Hello guys, welcome back to my channel. We are working on 100 days to CAT 2025, and in the last two videos I talked about how to analyze VARC and LRDI when it comes to mock or sectional. So you have guessed it till now maybe. So today we will talk about quants analysis. So most students keep giving mocks and sectionals but they don't know how to learn from their mistakes. So that's why I made these three videos including the today's one to analyze the mocks and the sectionals. So, quant analysis is a bit different from VARC and LRDI. And why? Because quants is structured in modules like arithmetic, algebra, geometry, numbers, and modern maths. And we have discussed in one of my videos in quants that how to approach these modules. So, we'll go step by step, and again, I am presenting 7-step strategy that you can apply after every mock. See, step 1 would be section snapshot. What I mean by section snapshot is note down your raw score, attempts, and accuracy after every mock. You don't have to just see score. Ask yourself how many did you attempt from your strong areas? How many were random guesses? And if there were many, I would suggest you one thing: never make guess and random guess in quants, because quants is a section where you can get 100% accuracy. You have to solve, you'll get one of the options and you can just mark it. It's not like VARC that maybe it could get wrong. It's not like LRDI that you have approached it wrong. So do not make random guesses in quants. So if you have attempted 14 questions, let's say, and you got 7 correct with 50% accuracy, this means there is a selection problem, because this should not happen when it comes to quants. So the first insight is, are you choosing the right battles in the exam or not? So from there only we come to a step 2, that is module mapping. So what I mean by module mapping is कि तुम्हें अपने modules को बांटना है arithmetic, algebra, geometry, number system और modern maths में. You have to highlight the questions you attempted from each of the module. Now you have to compare तुम्हारे preparation stage के हिसाब से. पहला, if module is already mastered, you don't spend too much time redoing those questions. If module is weak but partially prepared हो तुम, तो focus analysis पर यहाँ डालना है. और if module untouched है बिल्कुल भी, तो skip कर दो, अभी time मत waste करो mock में. This ensures that you are not wasting energy analyzing topics you haven't even studied yet. Now, if we move to step 3, easy versus medium versus tough segregation. What I mean is, take each question and mark. अपने हिसाब से उस पर easy, medium और tough लगाओ एग्जाम में. ईजी शुड हैव बीन सॉल्व, मतलब उसमें फिर अगर तुम उसे ईजी मार्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नहीं हुआ. मीडियम डुएबल है प्रैक्टिस के साथ, तुम्हें लगता है कि हाँ ये मीडियम तुमने इसलिए लगाई कि तुम कर सकते हो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है. टफ, लीव इट, नॉट वर्थ इट इन एग्जाम, क्योंकि अगर अभी तुम्हें ये टफ लग रहा है मॉक के टाइम पर तो इसका मतलब है कि अभी तुम इसे नहीं सॉल्व करना चाहते हो. नाउ द मिस्टेक दैट यूजुअली ऑल ऑफ अस मेक इज वी गिव इक्वल वेटेज टू ऑल रॉन्ग क्वेश्चंस. इट्स अ रॉन्ग अप्रोच गाइस. द करेक्ट अप्रोच इज तुम्हें मैक्सिमम टाइम वहाँ स्पेंड करना है जहाँ तुमने ईजी और मीडियम मार्क करा है और फिर भी तुम उसे मिस कर दिया. तुमने उस टाइम को तुम्हें एनालिसिस पर लगाना है. तुमने जो टफ मार्क करा तुमने टच ही नहीं करा, उसमें तुम एनालिसिस पे क्यों मार्क लगा रहे हो? डेफिनेटली तुम्हें एनालिसिस पे से मार्क लगाना है, बट कब? तुम उसमें तब अपना दिमाग लगाओ जब तुमने इजी मीडियम एनालाइज कर लिया और तुमने जो टफ मार्क किया तो तुम देखोगे कि कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं जो लेजिट डुएबल थे बट यू वर नॉट एबल टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो यू हैव टू एनालाइज दोज क्वेश्चंस. स्टेप 4 वुड बी आइडेंटिफाई मिस्ड सिटर्स. अब मैं मिस्ड सिटर से क्या मीन करती हूँ? गो बैक एंड फाइंड ऑल द सिटर्स यू मिस्ड. दीज आर द मार्क्स यू आर गिफ्टिंग अवे. आस्क योर सेल्फ, वाई डिड यू स्किप इट? लुक लेंदी बट मे बी इट वॉज नॉट. Why did you get it wrong? Maybe silly mistake, calculation error. So for each sitter, write the fix. Example, read carefully, check units और use ratio method instead of equation. ऐसा कुछ जो भी तुम्हारा fix हो वो तुम्हें लिखना है. This step alone can add 20 to 30 marks over mocks. Yes, you heard it right. Now step 5 is time management review. Look at time spent per question. वो तुम्हें already analytics में दिख ही जाएगा. Now ideally 1.5 से 2 मिनट्स अगर तुमने ईच क्वेश्चन में दिया है, गुड टू गो. अगर तुमने 5-5 क्वेश्चंस लगाया एक एक क्वेश्चन पर 5-5 मिनट लगाए सॉरी, तो यू हैव किल्ड 2 अदर ईजी क्वेश्चंस जिसमें तुम आराम से कर सकते थे, बट तुमने उस टफ क्वेश्चन को इतना टाइम देकर बहुत ईजी क्वेश्चंस छोड़ दी. तो स्ट्रैटेजी वुड बी इन एनालिसिस सॉल्व अगेन विद अ टाइमर. Find if a faster approach exists for that particular type of question. Note down shortcuts, alternate methods. Over time, this improves speed plus decision making. Now, guys, I have one tip for you. हम क्या करते हैं, मैंने भी अपने टाइम पर किया था. वेन वी जस्ट सॉल्व, मतलब मॉक्स नहीं दे रहे, बस हम ऐसे कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम नॉर्मल वाला कैलकुलेटर यूज़ करने लगते हैं. हमें ऐसा नहीं करना है. तुम नॉर्मल कैलकुलेटर से बहुत फास्ट कर लोगे और एग्जाम में तुम्हारे पास वो वाला कैलकुलेटर नहीं होगा, तो मेक श्योर कि तुम स्क्रीन वाले कैलकुलेटर से ही क्वेश्चन सॉल्व करो. दिस मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. पहली बात तो तुम्हें कैलकुलेटर पर जाना ही नहीं बार बार, बट अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें स्क्रीन वाला कैलकुलेटर ही यूज़ करना है. दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो अभी माउस ले लो. माउस के बिना कौन से क्वेश्चन मत सॉल्व करना. तुम लैपटॉप पे बहुत इजीली कर सकते हो, और जब तुम्हारे पास कंप्यूटर होगा तो वहाँ पर एग्जाम में तो तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी. तो ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्वांट्स. नाउ
तुमने टाइम मैनेजमेंट तो सीख लिया, बट अगेन हमारा 6 स्टेप बिल्कुल सेम होगा सारे एनालिसिस में, दैट इज मेंटेनिंग योर लॉग. सो एरर लॉग और री अटेम्प्ट बैंक. यू हैव टू मेंटेन एन एरर लॉग विद कॉलम्स लाइक क्वेश्चन नंबर, टॉपिक, एरर टाइप, कॉन्सेप्ट कैसा था, सिली कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से हुआ, टाइम मैनेजमेंट की वजह से हुआ, क्या करेक्ट अप्रोच होना चाहिए. इसका तुम्हारे पास एक रिटर्न स्लिप होना चाहिए. तुम्हें एक री अटेम्प्ट बैंक बनाना है. लाइक तुम एक कॉपी बना लो जिसमें तुम्हारे सारे रॉन्ग क्वेश्चन हो जो तुमने करा है, या तुम उसका टिक लगा लो, या तुम उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर उसे PDF में अटैच कर लो, जो भी तुम्हें फिजिबल हो. और वो क्वेश्चन तुम्हें ऐड करने हैं जो तुम्हारे रॉन्ग हुए मॉक्स में, और वो क्वेश्चन ऐड करने दैट यू हैव स्किप्ड बट इट वॉज डूएबल. Then you have to resolve them after 3 to 4 days without looking at solution. This ensures you never repeat the same mistake twice, and it will happen. So make sure you do it. Our last step is build strategy for next mock. And how do you do it? You will do it from analysis. Set rules for next mock. क्या rules? For example, attempt easy arithmetic first, then move to algebra. Skip lengthy geometry proofs, but do geometry question that was directly involving just the formula. If stuck for 90 seconds, mark and move, or leave and move. Mark तब करना है जब बहुत close हो, नहीं हो, just move. Keep adjusting after every mock your reattempt strategy. This create a प्रोफेशनल एंड पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी इंस्टेड ऑफ कॉपिंग अदर्स. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे कि हाउ डिड द टॉपर अटेम्प्ट द पेपर, और हम उस तरीके से एनालाइज करने लग जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. एवरीवन हैज़ देयर पर्सनल अप्रोच, और तुम्हें अपना अप्रोच के हिसाब से ही चलना है. यही मेन रीज़न ही है इस चैनल को क्रिएट करने का और ये सीरीज़ बनाने का, सो दैट कि तुम अपना चीज़ें ना खो. नाउ एक एक्स्ट्रा टिप मैं देना चाहूँगी, फोकस रिविजन साइकिल. हर 3 मॉक के बाद अपना एरर लॉग चेक करना. फॉर्मूला बुक मेंटेन अपनी रखना. फॉर्मूले बुक को मेट्रो में आते जाते, बस में ट्रैवल करते करते, कभी भी क्लास के बीच में टाइम मिल रहा है, ड्रॉ करो. सुबह उठकर रात को सोने से पहले रूम्स में लगा लो. चिप्स नहीं लगा सकते रूम्स में, स्टिकी नोट्स अपनी अलमीरा पर लगा लो, वो भी नहीं लगा सकते. बुक फॉर्मूला बुक अपने PDF के रूप में अपने फ़ोन में रखो और उसे रीड करो. रिविजन इज़ द की फॉर कॉन्स. गो बैक टू बेसिक्स, रिवाइज फॉर्मूला, सॉल्व 20-30 टारगेटेड क्वेश्चन. उस कॉपी में जाओ जो मैंने अभी मेंटेन करने को बोला, रॉन्ग क्वेश्चन वाली, स्किप्ड और डूएबल वाली, उन क्वेश्चंस को देखो. यू हैव टू रिवाइज कॉन्स अगैन एंड अगैन. This loop is practice, mock, analyze, targeted revision, next mock is the real growth cycle. और अगर तुम इस loop में रहोगे, you will definitely ace it. 99 percentile cons में कहीं नहीं जाने वाला है. So the conclusion for this video would be, this is the 7-step framework to analyze cons for 2025. Unlike LRDI or VARC, quant analysis must be module-wise and mistake-focused. Do not waste time on untouched topic yet. Double down on modules you have already prepared. Revise your formula book at least 2 times a week. Remember, mock test you, analysis teaches you. Do this consistently and you will see percentile shoot up. Write your current percentile or raw score in the comment section and write your next percentile after giving these much analysis. और उसके बाद तुम अपना improvement खुद देख सकते हो. If you found this useful, hit like, comment which module troubles you the most as I mentioned, और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक उस टाइप की वीडियो बना सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कैसे हम टैकल करने वाले हैं. एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कैट प्रेप स्ट्रैटेजीज. थैंक यू. वर्क